Hello everyone, welcome to my channel Krishna Singh. So if you are in class 10 ICSE board, so this channel is for you. आज हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसका एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, which is one of the most important chapter, that is theory of demand and demand, law of demand, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, what are various types of demand and elasticity of demand, इसके बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, तो डिमांड जो है वो पूरा एक कंप्लीट यूनिट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं एंड कई बार ऐसा होता है बच्चों को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज योर चैप्टर, क्या क्या उसमें लिखा है और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग शेयर करने वाले हैं आपके साथ। चलिए आ जाइए। तो ये रहा आपका चैप्टर का नंबर। आपके बुक में अगर कुछ और दिया है तो डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आईसीएसई बोर्ड की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। भाई बहुत बार हमने सुन लिया डिमांड डिमांड डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कॉमनली डिजायर, वांट, डिमांड इन सारे वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में भी इनका यूज इंटरचेंजेबली हो सकता है? आंसर इज अ बिग नो। व्हाई इट इज अ बिग नो? बिकॉज जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिमांड, तो डिमांड के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ करके आती है। व्हाट आर दोस थिंग्स? दोस आर, so in economics, if we talk about something as demand, we will say something, some desire or some want as desire only when few things are satisfied. What are those few things? Let us read from here. What is the meaning of demand? Demand for a commodity refers to the quantities of commodity which consumers are willing and able to purchase. First, I'm stopping here only. Willing means the willingness has to be there. If there is something in front of me which is interesting but I do not want to buy, means I do not have the willingness, so I can't say that I am the person who has demand for that particular commodity. Maybe I'm totally not interested in that particular commodity, so this cannot be called demand. So I should have willingness. If I'm a consumer, I should have willingness first of all. Second thing, I should have the capability of buying, means I should have buying power, or which is also called purchasing power. So second important thing for making any desire or want as the demand is that I should have purchasing power. Purchasing power means the money to buy that particular commodity. And one more very important thing about demand, that demand may be different at different prices and at different time period also. Maybe I want certain thing, I have willingness to buy, I have purchasing power also, but the price which is at which the commodity is available is so high that I do not want to buy it. Okay, so ऐसे desire को, ऐसे want को क्या हम still demand बुलाएंगे? Answer is no. इसको हम demand या desire, इसको हम demand नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर I am not ready to buy. Okay. देन टाइम पीरियड के साथ साथ भी क्या डिमांड चेंज होती है? डेफिनेटली चेंज होती है। प्राइस के साथ तो डिमांड चेंज होने ही वाली है एंड टाइम पीरियड के साथ ही। फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीजन में आई वांट टू बाय मॉनसून वेयर, मुझे अम्ब्रेलास खरीदना है, मुझे रेनकोट खरीदना है। 3 महीने बाद क्या मेरी डिमांड फॉर दिस कमोडिटी सेम रहने वाली है? मेरे पास परचेजिंग पावर हो सकती है लेकिन मेरे पास विलिंगनेस नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पीरियड में ये चीज खरीदने के लिए कोई भी डिजायर नहीं है या वांट नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए किसी भी चीज की डिमांड को डिमांड बुलाने के लिए by various people or consumer? We should have first of all what you should have the willingness to buy, number 1. Number 2, willingness to buy. Number 2 is purchasing power. Number 1 is willingness to buy, number 2 is purchasing power, and number 3 association of this particular demand with the price and the time period, because time period और price के साथ साथ जो demand है वो change होती जाती है। Let us read what is written as the meaning of demand. The demand for a commodity refers to the quantities of commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time.
क्योंकि टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइम पीरियड चेंज होने के साथ साथ डिमांड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डिमांड रिफर्स टू बोथ द डिजायर टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। दोनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर टू परचेस भी मतलब विलिंगनेस भी होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ परचेजिंग पावर भी होना चाहिए, एंड एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर और इंपैक्ट डालने वाले हैं, एक तो है प्राइस और दूसरा है टाइम पीरियड। क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, देखिए, डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस, इट मेक्स नो सेंस इफ demand is not related to a price. For a given price, demand tells us the specific quantity that consumer is willing to purchase at that price. For example, I usually buy a pen which comes for 10 rupees per piece. तो मैं उसकी जितनी मेरी डिमांड है, लेट्स से मैं महीने के सारे पेन एक साथ खरीद लेती हूँ, तो मुझे महीने में 5 पेन्स लगते हैं 50 रुपीस के लिए। आई एम रेडी टू बाय दैट। मेरे पास डिजायर भी है, मेरे पास विलिंगनेस टू बाय है मतलब, और मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, 50 रुपए मेरे पास है, तो आई कैन बाय दिस पेन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मुझे पता चले कि अभी इस पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपए से बढ़कर के 20 रुपीस पर पेन हो गई है, तो मेरे पास विलिंगनेस तो है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, बिकॉज आई हैव ओनली 50 रुपीस इन माय पॉकेट। तो आई विल नॉट बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी। मेरा जो क्वांटिटी है बाइंग का वो चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अभी ना खरीद के थोड़े दिन बाद खरीदूं, सोचे कि प्राइस कम हो जाए तब खरीदेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस चेंजेस क्या हो सकता है, डिमांड में चेंजेस हो सकते हैं, डिमांड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अगर 20 रुपीस का एक पेन मिल रहा है जो कि पहले 10 रुपीस का मिलता था, तो अभी डबल द प्राइस हो गया है, मैं 50 रुपए के अंदर 2 ही पेन खरीद सकती हूँ, और उसके पहले मैं 5 पेन्स खरीद पा रही थी, ठीक है। सो क्या हो रहा है, डिमांड जो है कम ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सो ये बात हमको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मींस एनीथिंग व्हिच इज डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर विद द विलिंगनेस टू बाय एंड द परचेजिंग पावर, एंड डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड by the price and the टाइम पीरियड एज वेल। चलिए, हमने डिमांड की मीनिंग को तो समझ लिया कि व्हाट इज कॉल्ड डिमांड। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई है। अ डिजायर टू बाय अ गुड इज बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड बिकम्स इफेक्टिव डिमांड। तो क्या हम इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड ही पढ़ने वाले हैं? यस, हमको सिर्फ इफेक्टिव डिमांड से मतलब है, व्हाट पीपल विश एंड व्हाट पीपल डिजायर, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है एक्चुअली। एंड डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, so demand does not refer to a single or isolated price कि 10 रुपए पर इतनी डिमांड है तो 15 रुपए पे कितनी डिमांड होगी और 20 रुपए पर कितनी डिमांड होगी। ये सारा हम साथ में स्टडी करते हैं कि कैसे जो पैटर्न ऑफ डिमांड है ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग। दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ डिमांड। ओके, चलिए, फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक में टाइप्स ऑफ डिमांड दिया होगा। आई विल कम बैक टू दैट टाइप्स ऑफ डिमांड, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हमें इसे समझ लेना चाहिए और फिर हम जाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, उसको चेंज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। तो नंबर 1 फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच विल इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो अगर प्राइस हाई होगा तो जनरली डिमांड कम होती है, और दूसरा, अगर प्राइस कम होगा, प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस लो होगा तो डिमांड हाई होगा। मतलब क्या कहने का कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ओके, सो प्राइस हाई डिमांड लो एंड प्राइस लो डिमांड हाई। कैसा इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा ज्यादा होगा तो ये वाला कम होगा, ठीक है। तो हाई प्राइस के ऊपर कंज्यूमर इज to demand more and low price के ऊपर consumer is going to demand lesser, ठीक है। तो price of commodity is very important factor of a particular commodity to be demanded by a consumer। उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब उसका इंक्लिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी है कि नहीं, उसको वो खरीदने अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वो भी डिसाइड करेगा। भले ही कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है, मेरा टेस्ट ही नहीं है उसको खरीदने का, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि यहाँ प्राइस वो फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
चाहिए, खरीद लेनी चाहिए कि नहीं खरीद लेनी चाहिए। मेरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेरा टेस्ट या प्रेफरेंस है। अगर मुझे 2 आर्टिकल सामने रखे जाए, इसमें से मैं ए को बिल्कुल ही ना बोलने वाली हूँ, भले ही उसका प्राइस बहुत कम है, और बी को सिलेक्ट करने वाली हूँ व्हाटएवर इज द प्राइस। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हाई प्राइस चीजों को लोग खरीद लेते हैं बिकॉज दे हैव द टेस्ट फॉर इट, दे प्रेफर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप देखते हो कि आईफोन इतना महंगा बिकता है लेकिन फिर भी लोग खरीद लेते हैं ना। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात होती है, ठीक है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन द सोशल कस्टम, हैबिट्स, फैशन, जनरल लाइफस्टाइल, एडवर्टाइजमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट, एंड सिंस दीस फैक्टर्स कीप चेंजिंग, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आल्सो कीप चेंजिंग। जैसे कि हम एक बात कर सकते हैं फैशन आर्टिकल्स की भी। जैसे पिछले सीजन में जो फैशन चल रहा था, उस सीजन के या उसके पिछले सीजन के क्लोथ्स अगर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे भी मिले या बहुत सस्ते दाम पर भी मिले तो भी शायद आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप फैशन चेंज हो चुका है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज बीइंग चेंज, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट। सो प्राइस यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। चलो, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर अकेला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रिलेटेड गुड्स होते क्या है। रिलेटेड गुड्स बच्चों 2 तरीके के होते हैं। रिलेटेड गुड्स में एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड एंड दूसरा रिलेटेड गुड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड? तो अगर मैं बात करूं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या? अगर मैं टी एंड कॉफी की बात करूं तो टी एंड कॉफी दोनों ही क्या है? दोनों ही हॉट बेवरेजेस है। तो अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक नहीं हूं कि नहीं मुझे तो कॉफी ही पसंद है, कभी भी मैं टी नहीं लूंगी, इन जनरल व्हाट पब्लिक डज कि टी या कॉफी कुछ भी मिल जाए दोनों चलता है क्योंकि दोनों ही हॉट बेवरेजेस हैं, ठीक है। या फिर हम अगर बात करें राइस एंड व्हीट, दोनों ही हम लोग अगर मेन कोर्स का उसमें कंजम्पशन करते हैं तो राइस एंड व्हीट दोनों ही ग्रेन्स है जिसका कि इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। ओके, सो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या जिनकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट सेम, कि चाय पिया या कॉफी पिया दोनों हॉट बेवरेजेस के अंदर आते हैं तो ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या हमने एक्स कोल्ड ड्रिंक या वाई कोल्ड ड्रिंक पिया, दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल आजू बाजू ही है दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कि दीज गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जब भी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट गुड। मतलब कि क्या? अब देखो कि अगर कॉफी भी 10 रुपए की मिलती है और टी भी 10 रुपए की मिलती है, नहीं मिलती है, मुझे मालूम है आप लोग यही बोलने वाले हैं कि मैम टी और कॉफी कहाँ बराबर बराबर मिलती है, दोनों 10 रुपए की कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन जस्ट अज्यूम कर लो बेटा जी, मैं बोल रही हूँ जस्ट थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी दोनों बराबर बराबर मिलती है, दोनों 10-10 रुपए की मिलती है, ठीक है। और ऐसा हो गया कि अचानक से कॉफी के दाम बहुत कम हो गए, 5 रुपए की कॉफी मिलने लगी और टी के जो कंज्यूमर्स है उन्हें लगेगा कि अरे ये तो सस्ती मिल रही है, पहले तो दोनों बराबर मिलते थे, दोनों हॉट बेवरेजेस चाहे ये पियो चाहे वो पियो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम है लेकिन कॉफी का दाम तो आधा ही हो गया है। जो क्यों नहीं जाओ और कॉफी कंज्यूम कर लो, 5 रुपए बच जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर एक कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड गुड का प्राइस डाउन हुआ, फॉल हुआ और उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी चाय मतलब टी का प्राइस तो कम नहीं हुआ लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई। तो कैसा रिलेशनशिप है? positive relationship between the price of one related good and the demand of other good। मैं कॉफी की डिमांड की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टी की डिमांड की बात कर रही हूँ। कॉफी की डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो दाम किसका कम हुआ बच्चों? दाम कम हुआ कॉफी का, और जो डिमांड है वो किसकी कम हो गई? टी की डिमांड कम हो गई। अगर मैं कॉफी की तरफ देखूं तो क्या हुआ? कॉफी में तो बढ़ ही गया ना, जो लोग पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो तो कंटिन्यू करेंगे ही, और जो टी कंज्यूम कर रहे थे वो भी आ गए और वो भी कॉफी कंज्यूम करने लगे, तो कॉफी की डिमांड जो है वो तो बढ़ ही जाएगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड ऑफ कॉफी में तो इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में बोल रही हूँ? प्राइस ऑफ कॉफी व्हिच हैज फॉलन डाउन एंड डिमांड ऑफ टी व्हिच हैज आल्सो फॉलन डाउन। तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। तो जब भी दो रिलेटेड गुड्स होंगे, रिलेटेड गुड मतलब एक एग्जांपल याद रख लो हमेशा के लिए, टी एंड कॉफी, तो दो रिलेटेड गुड्स जब होंगे उसमें एक रिलेटेड गुड का प्राइस अगर फॉल होता है तो दूसरे रिलेटेड गुड की डिमांड भी फॉल हो जाती है क्योंकि वहां के कंज्यूमर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं।
अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड गुड का, वो है सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि दोनों साथ साथ चलते हैं, कंपीट नहीं करते। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करते हैं? कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं मतलब कि दोनों को एक ही साथ कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि कॉफी के अंदर शुगर डाला जाता है, टी के अंदर शुगर डाला जाता है। जनरली बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो शुगरलेस कॉफी लेते हैं या फिर उसमें शुगर फ्री डालते हैं। जनरली जो होता है, मैं बता रही हूँ, ब्रेड एंड बटर का बहुत पुराना सा एग्जांपल, पता नहीं क्यों अभी तक आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत ही घिसा पिटा एग्जांपल है, बट हाँ अभी तक आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। टी ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल, शू एंड शूलेस का एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स लिखे हुए, ठीक है। तो क्या ये लोग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं? हाँ, क्योंकि बिना शुगर के कॉफी को कंज्यूम नहीं कर सकते, या बिना सिम कार्ड के मोबाइल फोन आपका किसी काम का नहीं है, हाँ स्मार्टफोन है तो फिर भी थोड़े बहुत यूज हो सकते हैं, तो बिना सिम फोन के किसी काम का, सिम के फोन काम का नहीं है उस तरीके से। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके प्राइस और उनकी डिमांड में क्या होता है? तो देखो, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो उसके साथ ही कंज्यूम होता है उसकी डिमांड जो है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? वो फॉल हो जाएगी। ये क्या है? ये एक, मैं अगर बात करूं कार और पेट्रोल की या कोई भी दूसरा जो भी फ्यूल यूज होता है कार में, तो अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज हो गए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल टुगेदर वहां पर हर एक गाड़ी का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल की डिमांड तो कम होगी ही होगी, और साथ में क्या होगा? फ्यूल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन आइसोलेशन में तो नहीं होता ना, फ्यूल का कंजम्पशन किसके साथ होता है? अलोंग विद द ऑटोमोबाइल, तो फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, एक का डिमांड ऊपर, एक का प्राइस जो है ऊपर गया और दूसरे की डिमांड जो है वो नीचे आ गई, ठीक है। तो आपके जो एरोस है वो कैसे चल रहे हैं? इनवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ कार इटसेल्फ और ऑटोमोबाइल इटसेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ द एसोसिएटेड गुड, मतलब कि जो उसके साथ जॉइंटली डिमांड किया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाई दे रहा है, क्या ये डायग्राम आपको बनाना है? इकोनॉमिक्स में जितना पॉसिबल है आप कोशिश करिए कि आप हर जगह पे डायग्राम बनाएं। ये देखिए यहाँ पर क्या मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया है? यस, मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया है। पहले से कुछ कुछ बना हुआ है, डोंट लुक एट दैट। तो ये जो है, ये डायग्राम जिसके ऊपर मैंने अभी टिक लगाया है, ये वाला डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर डिमांड ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ कॉफी का रिलेशन बताया, और कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों मैम बोल रही है पॉजिटिव रिलेशनशिप? देखो, एक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरे की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो प्राइस कम हुआ और दूसरे की डिमांड जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये जो है दूसरा वाला डायग्राम जो इसके नीचे बना हुआ है, जहाँ पे डिमांड ऑफ कार्स एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हो गया और उसकी वजह से क्या हो गई? डिमांड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे याद रखना है? ऐसे भी याद रखना है कि जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा वहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा वहां पर कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। और यही जो कर्व है, यही डिमांड का कर्व भी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? अभी तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच पीपल वांट टू बाय, उनके पास विलिंगनेस टू परचेज है एंड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर है, और डिमांड जो है वो अफेक्टेड होती है बाय द प्राइस एंड द टाइम पीरियड आल्सो। अगर अकेला मैं बोलूं कि 10 रुपए पर इतनी डिमांड है तो उसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड नहीं बोलेंगे। हमेशा हमें डिमांड को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर बतानी होती है कि कितने प्राइस पर कितनी डिमांड है, देन ही हम कोई स्टडी कर पाते हैं। और इसके बाद हमने एक टॉपिक को अभी के लिए स्किप कर दिया है जिससे हम आगे पढ़ेंगे जरूर। अभी हम लोग डायरेक्टली आ गए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। प्राइस तो है प्राइमरी फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू डिपेंड डिसाइड व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो है प्राइस। प्राइस के अलावा और क्या होने वाला है? प्राइस के अलावा यहाँ पर आने वाला है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई फेवरेबल चेंज होता है कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो उस कमोडिटी का ज्यादा कंजम्पशन करेगा इन स्पाइट ऑफ हाई प्राइसेस। और अगर उसको वो कमोडिटी अच्छी नहीं लगती है, अनफेवरेबल चेंज है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, तो इन स्पाइट ऑफ लो प्राइसेस डिमांड इज गोइंग टू बी लो।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। पहले तो रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड जो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, मतलब कि जैसे टी एंड कॉफी, तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस हाई होगा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई। और अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो डाउन होगा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की जो डिमांड है वो डाउन हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं मतलब कि जैसे कि कार एंड पेट्रोलियम, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस हाई हो जाए तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड लो हो जाती है, या फिर रिवर्स, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो जाए तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड हाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है। चलिए, तो अब मेरे पास है नेक्स्ट फैक्टर विच इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड करेगी, लेकिन इनकम ऑफ कंज्यूमर किस कमोडिटी की डिमांड कैसे डिसाइड करेगी वो अलग अलग होने वाला है। कैसे अलग अलग होने वाला है, देखो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कमोडिटी कैसी है। आपके पास तीन तरीके के गुड्स हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड, दूसरा होता है इंफीरियर गुड, और एक होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। ठीक है, तो तीनों के केस में अलग अलग बिहेवियर होगा डिमांड ऑफ कंज्यूमर विद द चेंजेस इन इनकम। नॉर्मल गुड्स जो कि नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं, कोई भी फास्ट फूड भी कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी गुड्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एडेबल आइटम्स जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सारी चीजें, ये सब कुछ हमारे नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कंजप्शन, बुक्स, स्कूल फीस एक्सेट्रा, ये सब हमारे नॉर्मल कमोडिटी में आते हैं। तो अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस कंज्यूमर की डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी कंज्यूमर की इनकम फॉल करती है तो उसकी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स आल्सो डिक्रीजेस। तो कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी उस कंज्यूमर की डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी विच इज अ नॉर्मल कमोडिटी और नॉर्मल गुड वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी कम हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है आपके पास, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनको कि कंज्यूमर बाय करता है मजबूरी में, क्योंकि उसके पास अभी इतनी परचेसिंग पावर नहीं है, और जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या करता है, इन गुड्स का कंजम्पशन कम कर देता है और नॉर्मल गुड्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं बाजरा और मेज इस सब का एग्जांपल दूं तो ये कैसे ग्रेन्स है, ये थोड़े सस्ते ग्रेन्स है, इंफीरियर क्वालिटी के ग्रेन्स है। तो किसी भी कंज्यूमर की जब इनकम कम होगी तो वो इनको कंज्यूम करेगा, और जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होगी वो कोशिश करेगा कि नॉर्मल ग्रेन्स यानी कि राइस, व्हीट, इसकी तरफ जाने लगे। तो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल होती है, और अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो इसी को खाएगा जो पहले नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करा था उसको भी छोड़ देगा, तो उसकी इनकम फॉल होने की वजह से डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनो बच्चों। नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम फॉल होगी तो डिमांड फॉल होगी। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में अपोजिट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल, और अगर इनकम फॉल करेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे सिर्फ इंफीरियर गुड्स ही कंज्यूम करना है। और इनकम इंक्रीज करती है तो उसके पास ऑप्शन है of reducing the consumption of inferior goods or leaving altogether consumption of inferior goods and shifting to the normal goods। ये तो बात हो गई नॉर्मल गुड्स की एंड इंफीरियर गुड्स की। अब हम चलते हैं कहां पर, हम चलते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज की तरफ। ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज क्या होती है, मतलब कि ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए लेकिन इतनी महंगी नहीं होती, जैसे कि सॉल्ट, मैच बॉक्स का एग्जांपल अभी तक पता नहीं क्यों बुक में लिखा हुआ है। आजकल तो हम लोग शायद सिर्फ मंदिर में दिया जलाने के लिए मैच बॉक्स का यूज करते होंगे, या फिर उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन यस इट्स स्टिल बुक में मैच बॉक्स का एग्जांपल, सॉल्ट का एग्जांपल, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि बहुत महंगी चीजें नहीं है बट स्टिल दे आर नेसेसिटीज, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज है जिसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा इनकम का पोर्शन स्पेंड नहीं होता है बट दे आर नेसेसिटीज फॉर अस। तो इनके केस में क्या होता है,
इन गुड्स पे हमारा इनकम का इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से बहुत फर्क नहीं होता है। आई विल स्टिक टू द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। जैसे कि हम महीने में 1 kg सॉल्ट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। अगर आप महीने में 1 kg सॉल्ट का कंजम्पशन करते हैं तो क्या आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आप 5 किलो सॉल्ट खाने लगोगे? आंसर इज नो, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमारे खाने में पड़ता है, ठीक है। तो हम उसका कंजम्पशन अचानक से नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि वैसे भी वो बहुत इनएक्सपेंसिव है और उसका हम स्टॉकिंग करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, और उसका कंजम्पशन नॉर्मली नहीं बढ़ेगा। या हमारी इनकम कम होगी तो क्या हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। कोई भी खाना बनाएंगे उसमें सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा, बिना सॉल्ट के कैसे बनेगा खाना? तो ठीक है, आप उसका हम जो मिनिमम कंजम्पशन है, बेयर मिनिमम कंजम्पशन, उसका हम कंटिन्यू रखेंगे। तो क्या हार्डली एनी डिफरेंस पड़ रहा है इस पे इनकम के चेंज की वजह से? यस, हार्डली एनी इंपैक्ट इज देयर बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। सो यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अभी के लिए आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस डायग्राम को मैं सजेस्ट करूंगी अभी के लिए थोड़ा देर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तब ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये था, ये जो नोट्स बनाए गए थे कंबाइनली बनाए गए थे। क्या यही चीज हम लोग क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं मैम? यस, बिल्कुल। आप बहुत खुश होंगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे, क्योंकि आपको सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है, बस थोड़ा सा इलाबोरेटेड रहेगा वहां पर, और कुछ नहीं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो वहां पर आपको ये डायग्राम बनाएगा। आपके जो क्लास 10th का बुक है उसमें ये डायग्राम नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट जो क्लास 10 की बुक है उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड अलग से दिए हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड अलग से दिए हुए हैं। डोंट वरी एट ऑल, मैं आपके साथ बुक का पीडीएफ यहाँ पे शेयर करूंगी और उसमें से दिखाऊंगी। लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अभी हम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि 3 तरीके के गुड्स हो सकते हैं। नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं, इंफीरियर गुड्स हो सकते हैं, और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज हो सकती है। इन तीनों में इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड का बिहेवियर डिफरेंट रहने वाला है। अगर नॉर्मल गुड है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इंक्रीज इन द इनकम, इंक्रीज इन द कंजम्पशन और डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड, फॉल इन द इनकम, फॉल इन द कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड। और अगर इंफीरियर गुड है तो उल्टा रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, फॉल इन द कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड और डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड। एंड अगर इनकम फॉल करती है तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड, ठीक है। थर्ड वाला है जो न्यूट्रल रहता है, जिसमें कि इनकम के चेंजेस की वजह से डिमांड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है या फॉल नहीं होने वाली है, बिकॉज ये इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है। तो यहाँ पर जो हमारी डिमांड का पैटर्न है वो उतना ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फोर्थ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देन उसके बाद कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। व्हाट कैन बी कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइसेस के लिए क्या है? तो अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाएंगे, तो कंज्यूमर अभी अपना कंजम्पशन कम रखेगा, अभी उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है कम करेगा, लेटर ऑन ज्यादा डिमांड कर सकता है, ठीक है। और अगर रिवर्स है, उसे ऐसा लग रहा है कि आज ही खरीद लो क्योंकि आज तो ठीक ठाक दाम पे मिल रहा है, फ्यूचर में ये पर्टिकुलर कमोडिटी और एक्सपेंसिव हो जाएगी तो आज ज्यादा अपनी डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइसेस टू गो अप, then he is going to buy more today at the current prices, and if he is assuming that future prices, expecting that the future prices are going to fall down, he will consume less now and postpone his consumption for the future period, जबकि उसे लग रहा है कि प्राइसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। क्या कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज अच्छी है? यस, आपने देखा होगा पहले के जमाने में, if you talk to your grandparents and all, उनके जमाने में लोग कोई लोन पे EMI पे फोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, इनफैक्ट हॉलीडेज पे जाना, और ये सब बहुत कॉमन नहीं था। ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लिया करते थे, तो घर बनाने के लिए लोन लेते थे, ये सब तो था नहीं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज उतनी थी नहीं, और लोन लेना बहुत बुरी बात मानी जाती थी। लेकिन आज का जमाना चेंज हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है। वी थिंक, आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन ये सोचती है, as long as we are earning and we are repaying, there is no harm in taking things on EMI. So people buy a lot of things on EMI. तो उसकी वजह से क्या डिमांड बढ़ी है? यस, डिमांड बढ़ी है, क्योंकि अब हमें वेट नहीं करना पड़ता कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का फोन खरीदना है तो मैं पहले 1 लाख रुपए इकट्ठा करूं और फिर जाके फोन खरीदूं। नहीं, आई कैन बाय टुडे इटसेल्फ, एज लॉन्ग एज आई एम श्योर अबाउट माय कंटिन्यूटी ऑफ इनकम, आई कैन पे इट स्लोली ग्रेजुअली इन EMI। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज जहां भी मार्केट में अच्छी होंगी वहां पर डिमांड हाई रहेगी, बिकॉज पीपल डोंट हैव टू वेट फॉर कलेक्शन ऑफ दैट मच ऑफ मनी एंड देन बाइंग द थिंग्स।
लेकिन अगर इसका रिवर्स होता है कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज आर नॉट गुड, देन द डिमांड विल बी लेसर बिकॉज पीपल विल हैव टू वेट टू सेव दैट मच ऑफ मनी एंड देन बाय द कमोडिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है भाई? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू शो ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि अगर सोसाइटी में ये बात है कि हाँ जैसी लाइफस्टाइल दूसरे जीते हैं मुझे भी पैसे देना है, शो ऑफ करना है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड फोन एंड ब्रांडेड एवरीथिंग लेनी है, तो लोगों का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो हाई रहेगा, ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन बड़ी डाउन टू अर्थ सोसाइटी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है मेरे पास जितना है मैं उतना ही कंज्यूम करूंगी, तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम ज्यादा कंज्यूम कर लो। अगर ऐसा सोचने वाले लोग हैं तो फिर वहां पर डिमांड जो है कम होगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो हमेशा क्या करता है? डिमांड को इंक्रीज कर देता है बिकॉज टेंड टू कलेक्ट, पीपल टेंड टू कलेक्ट दोस थिंग्स आल्सो व्हिच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बाय देम, बट जो कि शो ऑफ करना होता है, सोसाइटी में सबको दिखाना होता है, तो दे कीप बाय। नेक्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपका एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में आ जाएगा। तो कैसा आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है? अगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज है, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज एंड कॉम्पोजिशन भी कैसा है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे, ऑब्वियसली दे विल डिमांड मोर, एंड जैसे जैसे पीपल ओल्ड एज की तरफ जाते जाते उनकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है, दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ। ओके, सो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन बड़ा है तो ज्यादा डिमांड, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड इज गोइंग टू बी लेसर। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? हमारी इकोनॉमी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? क्या बहुत वाइडर गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फिल्दी रिच है। तो हमारे यहाँ जो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो बहुत प्रॉपर नहीं है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड पर लग्जरियस गुड्स है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो नेसेसिटीज तो ऑब्वियसली इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ओनली दे गोइंग टू बाय, उसके बाद किसके ऊपर खर्चा करेंगे? एक्सपेंसिव थिंग्स के ऊपर ही, तो लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी। और अगर उल्टा है कि नहीं, सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी है, सबके पास उतना ही रिसोर्स अवेलेबल है जितना की चाहिए, तो क्या होगा, तब नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा होगी और लग्जरीज की डिमांड कम होने वाली है। Then climatic factors also impact on the demand. जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अभी मानसून चल रहा था, बारिश के मौसम में बारिश का छाता, रेनकोट्स एंड वैसे रेनिंग शूज आप खरीदेंगे। जैसे ही कॉटन समर आएगा तो कॉटन की डिमांड बढ़ जाएगी, विंटर में विंटर वूलन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर आल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट। या फिर आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे औसतन कैसा क्लाइमेट रहता है, अकॉर्डिंगली आल्सो आपका खाना पीना रहना सब कुछ चेंज हो जाता है। देन गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है? अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाए हुए हैं, हर एक चीज का दाम महंगा है, तो ऑब्वियसली डिमांड कम रहेगी। और गवर्नमेंट काफी फेवर कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, टैक्सेशन कम कर रही है, तो चीजों के जो दाम है वो कम रहेंगे, प्राइसेस आर लेसर एंड पीपल आर गोइंग टू डिमांड मोर एंड मोर कमोडिटीज। ठीक है, तो बच्चों ये है सारे के सारे डिमांड के फंक्शंस। आपको मैं आपकी बुक के साथ मैचिंग करा के दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं, आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ। आज आप लोगों का काम ये है, आपका होमवर्क है आज के, आप इसको बैठ के बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। मैम ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे? बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मेरी ऐप कृष्णास क्लासेस, अगर अभी तक तुम लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लो। वहां पर अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज इसे मैं दे दूंगी। 2 जगह पर आपको आना है और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ आती रहेगी। क्लास 10 वेदर इट इज your economics, whether it is your commercial studies or commercial application, सबके लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को हिट करके रखो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग शुरू कर चुके हैं डिमांड का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पर हम देखेंगे, आपकी बुक के साथ में मैचिंग कराऊंगी कि कौन से फैक्टर्स जो है मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, वो भी बताऊंगी। मतलब टाइप्स ऑफ डिमांड जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक स्किप किया था उसको भी मैं आपके साथ वहां पर करा दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और उसे एंजॉय भी करिए। बाय।